यूरोपीय आंदोलन और वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद का असर भारतीय राजनीति और समाज में भी परिवर्तन की लहर ले आया, और कैसे क्या हुआ इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of nation states। जैसा आप जानते हैं कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप में आया वह राज्य के निर्माण से संबंधित था, मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के निर्माण के संबंध में था। There has been in Europe the nation states were formed and they were formed and they were the result of the feeling of nationalism, modern nationalism. This was the outcome of the modern nationalism। जो राष्ट्र राज्यों का संगठन यूरोप में हुआ वह आधुनिक राष्ट्रवादी विचारधारा का परिणाम था। It also means a change in people's understanding, और इसका यह भी अर्थ था कि लोगों के समझ में ही परिवर्तन किया जाए। Who they were, कि वे कौन थे, and what defined their identity, और उनकी पहचान क्या थी, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, और उनकी चल संपत्ति के संबंध में उनके क्या विचार थे, इनमें ही परिवर्तन। इट आल्सो मीन्ड अ चेंज इन पीपुल्स अंडरस्टैंडिंग। ये राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ उसका अर्थ था लोगों की समझ में परिवर्तन करना कि वे कौन थे, उनकी क्या पहचान थी, और उनकी अपनी चल संपत्तियों के संबंध में क्या उनकी समझ थी। इसमें परिवर्तन इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रवाद का द मेन purpose of this modern nationalism was to bring some changes in the understanding of the people about their identity and about their sense of their property। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities। न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, नए चिन्ह और नए प्रतीक चित्र, नए गीत और नए विचार, ये पैदा हुए और इनसे forged new links
और इन्होंने नए संबंध स्थापित किए और पुनः परिभाषित किया समुदायों की परिभाषाओं को। समुदायों की सीमाओं को परिभाषित किया, पुनः परिभाषित किया और पुनः उन्हें संबंधित किया नए प्रतीकों, नए विचारों, नए गीतों के माध्यम से। Everything was new. The symbols were changed, the icons were changed, songs were changed, and the ideas were changed. And this change make a link and give a new definition to the limits of the communities। जो उसमें जाति वर्ग समुदाय जो थे उनकी सीमाएं पुनः परिभाषित की गई, नए संबंध स्थापित किए गए, नए गीतों, नए विचारों, नए प्रतीकों और नए चित्रों से। But everything was new. The songs were new. It means the literature was changed. The icons and symbols, the portraits and thinking of portraying the pictures and the ideas of the people, the way of thinking of the people gave a new link and new definition to the society. In most countries, the making of this new national identity was a long process. अनेक देशों में इस नए राष्ट्रीय पहचान को बनाना एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा। राष्ट्रवाद के निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। There has been a long process. It took long time and long action in making the national identity of some of the countries in the world. ये जो यूरोपीय राष्ट्र थे, इनकी अपनी पहचान बनाने में एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, या एक लंबी प्रक्रिया के बाद उनका एक राष्ट्रीय पहचान बन पाया। How did this consciousness emerge in India? और कैसे यह चेतना भारत में उत्पन्न हुई? How this idea of nationalism came in Indians, in the people living in India. How this idea of nationalism came in the mind of the people living in India, because they were slaves from a long period. First there were Mughals and other invaders. Before Mughals there were so many invaders who came, and they caused devastation in India. They plundered India. After them the Mughals came and they established their kingship here, and they ruled over 500 years in India. After them the Britishers came. India continued to be slave for about 700 years. Then there came an effect and
influence of the European Revolution against slavery, there was the people living in the European countries, they raised their voice against the monarchy, feudal system, and they established their a republic democracy. This idea affected the Indians also. There came a consciousness in the mind of the people living in India that we also should be free. We also should make our nation free. And this national idea, how did it come among the people? In India, as in Vietnam and many other countries, the growth of modern nationalism is initially concentrated to the anti-colonial movement. In India, भारत में, जैसा कि वियतनाम और अन्य अनेक देशों में था, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, ये आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट। यह मुख्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से संबंधित है। उपनिवेशवाद के विरोध में जो आंदोलन हुआ, मुख्य रूप से यह जो राष्ट्रवाद का भाव है उसी से संबंध रखता है। औपनिवेशिक व्यवस्था थी भारत में, तो राष्ट्रवाद का मुख्य संबंध उन उपनिवेशों के विरोध से था, उस उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरोध में था। इन इंडिया द nationalism mainly was connected with the anti-colonial feelings, anti-colonial movements। जो उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन थे, उन्हीं से भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य संबंध था, जैसा कि वियतनाम और अन्य देशों में था। दे आल्सो, वियतनाम और अन्य जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, उनमें जैसे उपनिवेशवादी विरोधी धारणाएं ही राष्ट्रवाद के रूप में थी, मानी जाती थी। राष्ट्रवाद का अर्थ उपनिवेशों का विरोध करना ही जैसे वियतनाम और अन्य देशों में माना जाता था, भारत में भी वही स्थिति थी। People began discovering the unity in the process of their struggle with colonialism. People began discovering their unity. लोगों ने अपनी एकता को खोजना, पहचानना आरंभ किया। कहाँ? इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनीज। उपनिवेशवादी विरोधी उपनिवेशवाद के विरोध में जो संघर्ष चल रहे थे, उन्हीं प्रक्रियाओं में, उपनिवेशवाद के विरोध में चल रहे संघर्षों के प्रक्रियाओं में ही अपनी एकता की खोज लोग करने लगे। लोगों ने उन्हीं में संगठन करने का प्रयास किया।
जो लोग उपनिवेशवाद का जो विरोध कर रहे थे, उनमें ही उन एकता की पहचान करने लगे। माने देश शुड बी यूनाइटेड, अपनी एकता की खोज उसी में करूँ, उन्हीं के साथ एक होकर आंदोलन करने का प्रयास राष्ट्रवादी लोगों ने किया। द पीपल हु had got the idea of nationalism, they tried to find out some relationship with the people who were struggling against the colonialism. जो उपनिवेशवाद के विरोध में थे, राष्ट्रवादियों ने उन्हीं में एकता की खोज की, उन्हीं के साथ एक होने का प्रयास किया। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. The sense of being oppressed, उत्पीड़न के भाव, अंडर कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद के अंतर्गत उत्पीड़न के भाव, उन उत्पीड़न के भावों ने प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड, एक साझा सहयोग प्रदान किया। जो लोग उपनिवेशवाद से संत्रस्त थे, पीड़ित थे, वही लोग आपस में संगठित हुए। That tried many different groups together. That tied, जिसने अनेक विभिन्न समूहों को एकत्रित किया। उपनिवेशवाद के अंतर्गत उत्पीड़ित लोगों ने ही एकता का सूत्रपात किया और वही भाव विभिन्न वर्ग के लोगों को संगठित करने में भी काम आया। The people were too much tortured. They were being oppressed under the rule of under the system of the colonies, and they raised their voice against the colonialism. And to raise the voice against colonialism, they came together of the different groups and different ideas and societies. विभिन्न वर्ग, विभिन्न समाज, विभिन्न विचारों के लोगों में जो एकता का भाव आया, वह इसी उपनिवेशवाद के उत्पीड़न से पीड़ित होने के कारण ही हुआ। The people were oppressed under colonialism and they tried to make revolutions against it, and for this purpose different groups of the people came together, but each class and group felt the effects of colonialism differently. लेकिन हर श्रेणी और हर वर्ग के लोगों ने इस कॉलोनिज्म के प्रभाव को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया। जो इस उपनिवेशवाद का प्रभाव था, जो इसका असर था लोगों पर, उसकी अनुभूति भिन्न भिन्न वर्ग के, भिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों की अलग अलग थी। They felt it differently.
the people of different class and group, they felt the effect of the colonialism in different way. अलग अलग रूप में उन्होंने इसको माना. Their experiences were varying. उनके अनुभव विभिन्न थे. And their notions of freedom were not always the same. और चूंकि उनकी अनुभूतियाँ अलग अलग थी, उनके अनुभव अलग अलग थे, इसलिए स्वतंत्रता के उनकी जो विचार थे, जो नोशंस थे, आइडियाज जो थी, वो भी भिन्न थी, एक नहीं थी. इसलिए स्वतंत्रता के प्रति उनके जो भाव थे वो भी एक नहीं थे. अनेक वर्गों का संगठन हुआ, अनेक वर्ग के लोगों ने अपने को एकत्रित करके इस उपनिवेशवाद का विरोध किया. लेकिन जो अनेक वर्ग के अनेक श्रेणियों के लोग थे, उन्होंने विभिन्न ढंग से इस उपनिवेशवाद के असर का अनुभव किया. संपन्न वर्ग के थे, उनका कुछ अलग अनुभव था. किसान जो थे, उनका कुछ अलग अनुभव था. जो माने उत्पीड़ित तो सब थे, लेकिन सब लोगों के अनुभव अलग अलग थे. कारण कि उनका उत्पीड़न अनेक ढंगों से किया जाता था. तो उत्पीड़न के भावों की भिन्नता के कारण उनके अनुभव अलग थे, और इसलिए उनके स्वतंत्रता के भाव भी अलग अलग थे. विभिन्न ढंग से अपनी आज़ादी चाहते थे. हर की अलग सोच थी, हर की अलग समझ थी स्वतंत्रता के बारे में. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tries to forge these groups together within one movement. और कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन विभिन्न वर्गों को आंदोलन की एक दिशा में संगठित करने का प्रयास किया. उन सबको एक साथ ले आने का प्रयास किया. जो लोगों की विभिन्न मान्यताएं थी, विभिन्न सोच थी, विभिन्न अनुभव थे, उन सबको गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक संगठित आंदोलन के रूप में संगठित करने का प्रयास किया, एकत्रित करने का प्रयास किया. द कांग्रेस ट्राइड टू यूनाइट देम for a single movement. The Congress tried under the leadership of Mahatma Gandhi to unite all the people of the different experiences and different groups to raise voice against to struggle against this colonialism under a single banner. But the unity did not emerge without conflict. लेकिन जो यह एकता आई लोगों में, उसमें भी विघटन था, टकराव था. वह एकता समग्र नहीं थी, बल्कि उसमें भी लोगों के मत भिन्न भिन्न थे. There were some differences among the people, though they were invited under the banner of Congress, under the Association of Congress. In an earlier textbook, पहले की किताबों में, you have read about the growth of nationalism. आपने राष्ट्रवाद के विकास के बारे में पढ़ा होगा भारत में.
अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक, माने 1910 तक के भारत में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन आपने पिछली किताबों में पढ़ा होगा। You have already read about this development of nationalism in India in the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में पहले ही आपने पढ़ा है। इन दिस चैप्टर, अब इस अध्याय में वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920। अब इस चैप्टर में हम 1920 के बाद की कथा को लेंगे एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और 1920 के बाद जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस, अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम 1920। We will explore how the Congress sought to develop the national movement। अब यहाँ हम प्रयास करेंगे ये खोजने का प्रयास करेंगे कांग्रेस ने इस राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे विकसित किया, कांग्रेस ने कैसे इसको विकास प्रदान किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और कैसे विभिन्न वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे राष्ट्रवादी भाव ने लोगों पर अपना अधिकार जमाया, कैसे लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में सोचना शुरू किया। How this idea came in the mind of the people and how they took part in the national movement, and how the Congress developed this national movement. What was the process of Congress? What was the process Congress adopted to develop the national movement in India? We will try to find out now in this chapter. The First World War. The First World War, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इन द ईयर्स आफ्टर 1990 we see the national movement spreading to new area. In the year after 1990, 1919 के बाद हम देखते हैं, हम यह पाते हैं, हमें देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों में भी फैला, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, और इसमें नए सामाजिक वर्गों ने भी भाग लिया। We see that after 1919, this national movement spread over new areas and some new social groups also participated in it. नए समाज ने भी, नए सामाजिक वर्गों ने भी इसमें भाग लिया।
and developed new model of struggle. और उन्होंने संघर्ष के एक नई विधा का विकास किया, नए आदर्श का, नए प्रकार का विकास किया, मैंने संघर्ष का स्वरूप बदल दिया. Now the shape of the movement struggle also changed. The area was changed. Some more people also participated in it, and the way of their struggle also was changed. How do we understand these developments? अब इन विकासों को हम कैसे समझेंगे? What implication did they have? और इनके क्या परिणाम थे? ये विकास कैसे हुए और ये कैसे विकसित हुए और इनके परिणाम क्या मिले? माने जो नए समाज के लोग नए क्षेत्रों में नए रूप में जो इस आंदोलन का विकास हुआ, पहले तो इसकी विकास की प्रक्रिया क्या थी, कैसे ये विकास हुआ इस आंदोलन का, कैसे यह आंदोलन आगे बढ़ा और फिर उसके परिणाम क्या हुए, व्हाट वर द रिजल्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी. इससे राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ. देयर केम so many changes in the political and the economic status of the people living in India. It led to a huge increase in defense expenditure. डिफेंस एक्सपेंडिचर, सुरक्षा व्यय में इससे बड़ा बहुत बढ़ोतरी हो गई. सुरक्षा पर व्यय होने वाला धन बहुत अधिक हो गया, which was financed by war loan. और फिर इसके लिए पैसा कहाँ से आए? तो इसको फाइनेंस किया वार लोन ने, युद्ध के लिए कर्ज लिया गया. और इंक्रीजिंग टैक्सेस, और टैक्स बढ़ा दिए गए. सरकार ने लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया. जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया और युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए अन्य देशों से कर्ज लिया. तो इससे आर्थिक स्थिति अत्यंत परिवर्तित हुई, देश पर भार बढ़ा. कस्टम्स ड्यूटीज वेर रेस्ड, सीमा शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया. एंड increase इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और आयकर लगा दिया गया. लोगों की आमदनी पर कर लगा दिया गया. कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिए गए. और कुछ तो इस आंतरिक धन इकट्ठा किया गया और कुछ जो है बाहर से लोन लिया गया. The government there was a increase in the defense expenditure, and due to that some loans were taken from the countries, taxes were increased, custom duties have been increased, and new income tax was imposed upon the people. Through the war years, prices increased. और इन युद्ध काल में, इस युद्ध काल में, युद्ध के वर्षों में कीमतें बढ़ गई. हर चीज़ों की कीमतें बढ़ी. डबल्ड बिटवीन 1930 to 1980. 1913 से 1918 तक हर चीज़ों की कीमत दुगनी हो गई, इतनी बढ़ोतरी हो गई. लीडिंग टू
एक्सट्रीम हार्डशिप, और इससे हुआ क्या, अत्यधिक कठिनाइयाँ लोगों की बढ़ गई फॉर द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग थे। सामान्य लोगों की कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द प्राइसेस इंक्रीज, देयर वाज ग्रेट हाइक in the prices of the things. All the things have been very costly. The costs developed to the limit of double. They were doubled. The costs were doubled. The prices were just doubled. And this caused a great difficulty to the common people. सामान्य लोगों को इससे बड़ी परेशानी हो गई। विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गाँव से कहा गया कि वे सैनिक भेजें। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और गाँव ग्रामीण क्षेत्रों से फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती सेना में भर्ती की गई, और इससे लोग बहुत नाराज हुए। ग्रामीण क्षेत्रों से सैन्य भर्तियां बहुत ज़्यादा की गई, जबरदस्ती। गांव से कहा गया कि वे सैनिक भेजें, न भेजने पर गांव से युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया, और इससे लोग बहुत नाराज हुए। There has been forced recruitment in the army, and the villages were asked to send the soldiers forcefully. Due to this, the villagers were too much angry. Then in 1918, 99, 1919 and 1920-21, crops failed in many parts of India, और जिस समय फसल नष्ट हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उत्पादन घट गया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। उसका परिणाम क्या हुआ कि भोजन की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए खाद्यान्न की कमी हो गई। 1918, 1919 और 1920, 1921 में खाद्यान्न की किल्लत हो गई, क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई। देयर वाज नो गुड क्रॉप, and therefore there was a shortage of food materials. This was accompanied by an influenza epidemic, और इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा महामारी आ गई। There was the attack of influenza epidemic. According to census of 1921, 1921 की जनगणना के अनुसार 12 to 30 million people perished. 12 से 13 लाख लोग मर गए as a result of famine and epidemic, अकाल और महामारी के परिणाम से। अकाल और महामारी के कारण 12 से 13 लाख लोग मर गए 1921 की जनगणना के अनुसार। There was the count of the people living in the country, and according to the count of the people, the official count of the people, 12 to 13 lakhs of 13 million people were killed due to a epidemic and the famine, shortage of food. People hoped, लोगों ने आशा किया था that कि their hardship would end after the war, कि युद्ध के बाद उनकी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। अब वो आशा खत्म हो गई, वाज ओवर। अब वो आशा नहीं रही, बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने सोचा था कि युद्ध के बाद
हमारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैट डिड नॉट हैपन। एट दिस स्टेज a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। और इस स्तर पर एक नया नेता उभरा जिसने संघर्ष की एक नई विधा की सलाह दी, संघर्ष के एक नए प्रकार, एक नए स्वरूप को लोगों को सुझाया। He suggested the people a new method of struggle। There came a new leader and suggested a new method of struggle to the people of India for the freedom। That's all।